हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 21। ये 21 चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें आज हम करेंगे पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप, यानी जनमत और जो है दबाव समूह क्या होती है। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों को इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण साबित इसलिए भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। साथ में आपके समक्ष डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा और समझाया भी जाएगा, तो ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here a public opinion and pressure group. There is a most important chapter. There is a most important point arrive here, a formation of public opinion. There is a most important point, the formation of public opinion, and there is not defined as automatic process for the formation of public opinion. Whenever and the issue of public opinion is concerned emerge and various sections of society express their view. In the process, some viewers receive large attention and emerge of public opinion, and there are the informal and formal process that is a mode of public opinion. The next topic is here political socialization. There is the most important topic here. Political socialization is the basis process through which is very individual as oriental with their respect to political issue. A human beings live there to grow in the family, neighborhood, and the friends and community and their religion. The intention of attitude of belief and the value toward their political system acquired shape in the association of their group. And the most influences in the personality, information, and character of building are their family and their peer groups. They provide as a basis moods in the influence on the idea and the opinion of the individual. The orientation in the individual through their process determine their view and the reaction toward the political issue. There is show the most important here agency and public opinion. There is a part of the here show in this diagrammatic. There is the most important. There is education institution, press, radio, television, cinema, public meetings, political party. There is activity and social socialization, and here public is a poll. Here is the opinion of the poll. There is the most important agency of public opinion here. The first point here, the press. The press, the print media include a newspaper, periodicals, pamphlets, journals, as a leaflet, etc. The press as a print media is a supply the new regarding all political and social happenings and in the world. It is through there is the flood and the light is a current issue, and in fact a press regarded as the watchdog of their democracy by carrying the voice of the public to be a government. And people express there is the criticisms and support in the form of the articles. Their criticism is the most important from the articles and comments there through the pressure. And the press is the hands there that is a make a government is responsible and answerable. In fact, government also is a progate. It is a policy and program through the media, and it is try to the highlights it is achievement to be make is a public opinion in it is a favor. There is the most important for the role in a press in a his opinion of the public. The public opinion is the next source here, a radio and television. There is the most important. Electronic media, radio or television act a mirror of the social life. Print media is influenced there only as education.
The electronic media is a play on important parts of the collecting the information and modeling their through of the uneducated as a mass also. The audio-visual media is used to a powerful mean for the bearings about a social transformation and setting up to the new social order free from a social evil. It is used to the educate of the mass and content to sensitive issue like catalysms and communism and violence, etc. Through the radio and television, mass is to communicate. There is a feeling and opinion is to about the various government policy and programs. The next source of public opinion here, the cinema. The cinema has been to the traditional media of entertainment and awareness. The cinema is catered to be artistic and intellectually need for the people. It's a cultivate a new idea and the norms in the societies on the political and social problem. The feature films and the commentary films has there is a nature's impact on the things of the people, and this audio visual method can be even influence the intellect. There is the most important. The next year, a public meeting. The public meeting is a platform are effective the means of the modelings of public opinion for a different social, cultural, and actually and the political activities. They address the public issue and they are also able to be a gather hacks and the crowd through the literature, seminar, symposiums and workshop and the conference. And they try to establish a person and emotion bond with the public and motivate them toward positive and healthy steps. The next here is important here is the political parties and their activity is the most important here. Public opinion, their point. Political parties the formulate, organize and public opinion are that is called to the modelizer of opinions. Political parties not only make the peoples aware of the various public issue. There is a purpose is the make the people is a politically conscious thing about the public problem. The political party is the publish a journalist as a pamphlet and the lift of the manifestos and posts etc. to mold their public opinion in their favor. And next year is opinion poll. The opinion poll serve to indicate the public opinion at the time of their being taken, and they are the very effective way of the gathering of information about the public attitude and the opinion on the various political, social, culture, economical, etc. matter. They are normally conducted by their professional agency, selected a representative sample of population. Of the late, they are the becoming a very useful and popular method to understand and the analyze the public opinion. The next area is education institution. There is the most important area education institution. They include of school, college, literacy, clubs, studies, circles, universities, and the libraries, etc. They can be mold of public opinion to be a great extent. The other hand is that get is easily aware by their opinion of other, and therefore the right kind of training and very important for their age group. Imagine of the leaders, scholar, and the educationalist as a help to the moldings. There is a leadership communities and their help in the creating is a public opinion through their debates, talk, seminar, etc. The various circular activity like a drama, symphonies, painting, slogan, writing, competition, etc. also prove every effective and sensitizing the student on the important national and international issue. There are the content limitation on the issue of public opinion. It is a belief that the public takes interest in the local and national affair. The public is reasonable, well as informed. The public's thinking with the reason and the logic arrive at the rational is a conclusion. The opinion of there is a public expressed through their election poll and public opinion aware keep there is the government on it is a terms of their alert. Government make the law based on the social and moral principle expressed by its. Public opinion is the voice of the interested or specter of action. Public opinion reflect the plurality and diversity of the opinion. Sometimes it is a take very casually and it is a more and matter of the interpretations. The fault does not be lies with their opinion but with the interpretations. At the time, sample may be also not appreciate in a model and
and the mark society is the people read. Listen and see so much that it is not away easily for them for a shift the fact from to the fiction. And hence it is a pose of great challenge to the people to make a intelligent discrimination of the news and the view. However, the fact remains that public opinion is a very effective mean of the communication between the government and the citizen. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जनमत का निर्माण। देखिए जनमत का निर्माण कई मायनों में इंपॉर्टेंट रहता है और इसके कुछ पॉइंट जो है हमारे लिए बहुत ही जो है मार्गदर्शन का कार्य करेगा। कहते हैं जनमत का निर्माण किस प्रकार होती है। जनमत के निर्माण की कोई निश्चित या स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती है। यानी जनमत के अगर निर्माण की बात करें हम तो इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, न स्वचालित कोई प्रक्रिया है। जब भी जो है जन सामान्य से जुड़ी हुई कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो समाज के विभिन्न वर्ग अपना अपना मत जो है व्यक्त करता है। तो ये तो आप जनरली जानते हो, कोई प्रॉब्लम आती है समाज में तो इसमें जो है हर लोग जो है अपना मत रखते हैं। मान लो कोई घटना घट जाती है तो सबका अपना अपना मत होता है। ऐसी स्थिति में कुछ मतों पर लोग विशेष ध्यान जाता है और वह जनमत के रूप में उभर भी जाता है। ऐसी बहुत सी औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया होती है जो जनमत का निर्धारण कर उसे स्वरूप प्रदान करती है। देखिए कहते हैं कोई रूल रेगुलेशन जब लागू की जाती है समाज में तो सिर्फ कहते हैं कुछ कुछ व्यक्तियों की जो अच्छे ओपिनियन होते हैं वो भी लिया जाता है। कहते हैं कुछ ओपिनियन जो होती है हमारे समाज के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करता है और उस ओपिनियन को हम लेके जो है आगे चल के उसको जो है अच्छे से अच्छे बनाते हैं। तो ये ओपिनियन जो है औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जनता का जो है विचार लेके सरकार आगे बढ़े जिससे कि कोई तरह की प्रॉब्लम जो है न फैले और जो गलत लोग हैं उनको जो है मौका न मिले। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार हर रूल रेगुलेशन को जो है जनता के समक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो रख के जो है रूल रेगुलेशन को लागू करे। तो इससे क्या होगा कि जो गलत लोग हैं जो सांप्रदायिक दंगा फसाद करवाना चाहते हैं हमारे देश में उनका जो है उनका हाथ ही नहीं बन पाएगा इन चीज़ों में और वो धरे के धरे उनके विचारधारा रह जाएगा। तो सरकार को इस बात को सदैव ही ध्यान में रख के ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे है हमारा जो अगला पॉइंट है वो राजनीति सामाजिकरण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं राजनीति सामाजिकरण हमारे लिए क्या वैल्यू रखता है और उसका क्या महत्व है। राजनीति सामाजिकरण एक ऐसी मूल्य प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति जो है राजनीतिक मुद्दे के प्रति सजग हो जाता है। यानी जो राजनीतिक मुद्दा होता है उसके प्रति जो है हमेशा जो है अलर्ट रहता है। प्रत्येक मनुष्य जो है परिवार पड़ोस और विभिन्न क्षेत्रों में पलता एवं बढ़ता है। राजनीतिक शासन प्रणाली के प्रति व्यवहार भी करता है और मान्यताओं और मूल्य का जो है निर्धारण उसके समूह में ही हो पाता है। व्यक्तित्व के निर्माण और चरित्र विकास में सबसे ज़्यादा प्रभाव परिवार की जो है मित्र समूह का ही होता है। यानी अगर आप देखोगे तो परिवार के बाद जो है सबसे अधिक जो लोगों पे प्रभाव पड़ता है वो जो है उनका मित्र यानी पीर ग्रुप का पड़ता है और पीर ग्रुप के बाद जो है काफ़ी लोग जो रहते भी हैं। ये समूह ही किसी व्यक्ति के निजी विचार और दृष्टिकोण के आकार प्रदान करने में जो है आधारभूत भूमिका भी निभाती है। यानी देखिए कोई उनका जो निजी व्यक्तित्व अपना विचारधारा रहेगा उसका एक जो है आधारभूत जो है रूप प्रदान करेगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति जो है विशेष के राजनीतिक मुद्दे के प्रति विचार और प्रतिक्रियाएं जो है निश्चित होती रहती है जो कि बहुत काफ़ी ज़रूरी भी है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आप डायग्राम देख रहे होंगे ये जनता की एजेंसियों के रूप में है। ये जनमत की जो एजेंसियाँ हैं उसके ऊपर दिखाया गया है। मैंने आपको बताया भी था कि सरकार जो है अपनी कोई भी रूल रेगुलेशन लागू करने से पहले जनता का जो है ओपिनियन ले सकती है जिससे बहुत ही दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अग्निवीर जो प्रोग्राम लागू किया गया था इसमें बहुत से रेल जो है लोगों ने जला दिया था और कहते हैं जो आम व्यक्ति नहीं भी जलाए होंगे लेकिन जो हमारे देश में जो है अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति सब हैं उनका जो है सबसे बड़ा उनका हाथ मिल गया था और उनको एक मौका भी मिल गया था कि इसके प्रति जो है लोगों को भावुकता को फैलाए और उनके विचारधाराओं को जो है टटोले। तो इसमें जो है सरकार ने उनको मौका दिया। अगर वही विचारधारा अगर जनता के सामने वो उन्होंने रखा होता पहले ही, ठीक है, तो इस तरह की घटना नहीं घटती। जैसे आपने देखा भी हुआ किसान बिल में भी बहुत सी घटना घटी और बहुत तरह से जो है लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो ये सब क्या कारण था? क्या सरकार नहीं जानती थी कि ये सब चीज़ें सही नहीं है, हमें सरकार को जो है जनता से ओपिनियन लेना चाहिए? सरकार सोचती है कि ओपिनियन कैसे हम ले। सरकार बहुत समझदार, आपको पता ही है। सरकार जो इन माध्यमों का भी उपयोग कर सकती है। उनके पास ये माध्यम सिर्फ कहते हैं प्रचार करने के लिए होता है लेकिन जो है लोगों से ओपिनियन लेने के लिए कभी इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया आज तक। सिर्फ वो जो है अपने पार्टियों का प्रचार ही करती है इससे। जैसे आपको पता है कि प्रेस हो गया, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, जनसभाएं, राजनीतिक दल और उनके गतिविधियां, राजनीतिक समाजीकरण, जनमत सर्वेक्षण, शैक्षिक संस्थाएं,
ये सारे जो है जनमत की एजेंसियां हैं जहां से सरकार जो है अपनी हर बातों को रख सकती है जनता के समक्ष और जनता से जो है विचारधारा ले सकती है। कहते हैं जो जनता से विचारधारा ली जाती है उसमें जनता दोबारा पछता नहीं सकती है और जनता कभी सरकार को गलत भी नहीं कह सकती है। तो हमारा जो पब्लिक ओपिनियन के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट आया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है प्रेस। देखिए प्रेस से तो आप भली भांति परिचित ही होगी कि जो प्रेस है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहते हैं कोई भी विचारधारा होती थी उसको प्रेस में छाप के जो है रातों रात घरों के अंदर जो है दरवाजे के माध्यम से डाल दी जाती थी, जिससे लोग जो थे अवगत हो जाते थे कि हमें ये कार्य करना है। अब देखिए उस समय कितना अच्छा जो है प्रेस माध्यम का उपयोग किया गया। आज हमारे देश में जो है सरकार ये चीज़ों पे बहुत बड़ी गलती कर रही है कि कोई भी बात को जो है कहते हैं छुपा के रखती है और एकाएक जो है लागू कर देती है, जिसके वजह से जो है जनता संभल नहीं पाती है और जनता को इस बात को एहसास भी नहीं होता कि ये होने वाला है। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े जो होते हैं इंडस्ट्रीज वाले को ये बात की जो पहले ही उनको खबर मिल जाती है। ये आपने नोटबंदी में भी देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यही बात यहाँ पर बताया गया कि प्रेस की क्या भूमिका हो सकती है, सरकार प्रेस का इस्तेमाल क्यों नहीं करती है जग कल्याण के लिए। कोई भी प्रोग्राम अगर लागू करना है पहले जनता से विचारधारा लेना चाहिए। इससे ये होता है कि अराजकता नहीं फैलती है हमारे समाज में। कहते समाचार पत्र और जो पत्रिकाएं, फिल्में और इश्तिहार आदि प्रिंट मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है और प्रेस और प्रिंट मीडिया संसार में घटने वाली राजनीतिक एवं सामाजिक घटनाओं में हमें जो अवगत भी कराते हैं। ये सब सामाजिक मुद्दे पर प्रकाश भी डालते हैं और वास्तव में प्रेस एक ऐसी जो है पहरेदार के रूप में काम भी करती है जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाती भी है। प्रेस के माध्यम से जनता अपने लेखे और टिप्पणियों से जो है सरकार के कार्यों को जो है आलोचना भी सराहना भी करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेस सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार बनाता है। इसके अलावा सरकार स्वयं अपनी नीति और कार्यक्रम का जो है प्रेस के माध्यम से प्रचार भी करती है। यह अपनी उपलब्धियों और गिनवाकर जो है जनमत को अपने समक्ष करने का प्रयास भी करती है। यानी प्रेस देखा जाए तो बहुत बड़ा माध्यम है सरकार के अपनी विचार रखने के लिए भी और सरकार को जो है जनता के विचार से अवगत होने के लिए भी प्रेस माध्यम जो है बहुत सख्त जो है कारगर के रूप में कार्य कर सकता है। उसके पश्चात आता है रेडियो और टेलीविज़न। देखिए ये भी जो है पब्लिक ओपिनियन के अंतर्गत बहुत ही सशक्त माध्यम के रूप में देखा जा सकता है। रेडियो और टेलीविज़न कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे रेडियो और टेलीविज़न समाजी जीवन के जो है प्रतिबिंब के रूप में कार्य करते हैं। प्रिंट मीडिया समाज के केवल शिक्षित वर्ग को ही प्रभावित कर पाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है समाज के अशिक्षित वर्गों को इस विषय में भी जानकारी एकत्र करने और उनके विचारों को जो है निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दृश्य श्रवण यानी ऑडियो विजुअल मीडिया का प्रयोग एक ऐसे सशक्त माध्यम के रूप में भी किया जा सकता है जो हर प्रकार की सामाजिक बुराइयों से मुक्त और सामाजिक रूपांतरण और नई सामाजिक व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन करता हो। यह लोगों के जातिवाद और सांप्रदायिक हिंसा जैसे मुद्दे पर शिक्षित भी करती है। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से लोग सरकारी नीति और कार्यक्रम के प्रति अपना भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी जरूरी बात है कि टेलीविज़न वो माध्यम है जिसमें जो है आप पिक्चर को भी देख सकते हो। इसे जो कहते हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो भी जो है समझ सकते हैं क्योंकि उन्हीं के भाषा में जो होता है न्यूज़ सारे होते हैं, तो उनको समझना बहुत ही आसान हो जाता है और वो सरकार की नीतियों से अवगत भी बहुत ही भली भांति हो सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। और सरकार को इस माध्यम का जैसे इलेक्शन में प्रचार करते हैं वैसे जो है नया नीति लाते हैं उसको भी ऐसे ही प्रचार पहले करना चाहिए। प्रचार करने से ये होता है कि हर जनता जो होती है ऑटोमेटिक जो है अपना राय विचार देने लग जाती है, इससे हमें सही का ज्ञान भी हो जाता है। उसके पश्चात है सिनेमा। देखिए सिनेमा भी बहुत बड़ी माध्यम है। आपने देखा ही होगा कि सिनेमा में जो है जैसे सिनेमा स्टार्ट होता नहीं है कि एक प्रचार आती है कि सिगरेट जो है जानलेवा है। ठीक है, ये जानलेवा है, ये बात सही है, लेकिन सरकार इसका उपयोग क्यों कर रही है? इसकी फैक्ट्री को बंद क्यों नहीं कर देती है? ये आपने कभी सोचा है कि सिनेमा में सबसे पहले यही आता है कि तंबाकू सिगरेट जो होता है जानलेवा है? क्या वो जनता को खोखला बनाना चाहती है? तभी तो बड़े बड़े कंपनियों को उन्होंने ताला आज तक भी नहीं लगवाया है। कहते हैं जो हमारे देश के लिए बुराई है उनका धड़ल्ले से सरकार जो है प्रोत्साहित करती है। शायद सरकार को इससे मुनाफा होती है, इसलिए सरकार इसको बंद नहीं करती है। फिर टेलीविज़न में दिखाने का क्या फ़ायदा है? वो तो अगर मान लीजिए टेलीविज़न में अगर दिखाने से सारे व्यक्ति समझदार हो जाएंगे तो इनका ऑटोमेटिक जो है इनका कंपनियों पर ताला लग जाएगी। लेकिन हम जानते हैं ना कि हमारे देश की जनता जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप की है,
जो चीज़ को प्रचार किया जाता है ना वही चीज़ लेके आगे चलते हैं। उनको पता है कि इससे कैंसर होती है, उनको पता है कि ये उनके बाल बच्चों के लिए खतरनाक होती है, फिर भी वो लोग धड़ल्ले से जो है बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, शराब दारू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सरकार तो ये भाई चलाएगी ही चलाएगी, क्योंकि उनसे उनका मुनाफा जो इसमें जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि टेलीविज़न में जो सिनेमा में सबसे पहले प्रचार तो उसी चीज़ की दी जाती है, लेकिन सरकार इस पर जो है सख्त कदम नहीं उठाती है। किसी राज्य में आपने देखा होगा कि जो है शराबबंदी कर दी गई है, लेकिन शराबबंदी सिर्फ शराबबंदी नहीं किया गया है, उस राज्य में धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है। अगर ज़मीनी हकीकत आप जाकर देखोगे ना तो आपको हर एक क्षेत्र में जो है शराब की उतनी ही बोतल मिलेगी जितने दूसरे राज्य में मिलते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है, नाम मात्र का नोटबंदी है। इसमें कोई व्यक्ति अगर गलती से उनको शराब के साथ पकड़ा गया तो कहते हैं उनके तो जीवन को दुश्वार बना देते हैं। इवन कि उनके चेकिंग करने के चक्कर में वो उनके माता पिता को भी परेशान करेंगे, उनके बच्चों को भी परेशान करेंगे, उनके दादा दादी को भी परेशान करेंगे। और घर में पहुंच गए तो घर में अगर कैश कुछ पड़ा होगा वो भी उठा के लेके चले जाएंगे, और बंदा पकड़ा गया तो उसका तो कहते हैं खैर भी नहीं छोड़ते हैं। तो ये किस बात के लिए बनाया गया है, क्या रूल है? तो यही बात यहाँ पर ये दर्शाता है कि सिनेमा में मनोरंजन के साथ साथ लोगों को अवेयरनेस भी किया जाता है कि ये चीज़ें गलत है। ठीक है, सिनेमा मनोरंजन की जागरूकता लाने के लिए एक जो है पारंपरिक माध्यम रहा है, और सिनेमा लोगों की जो है कलात्मक जो है अभिरुचियों को वैदिक आवश्यकताओं पूरा करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ये सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पर जो है विचार और प्रतिमान का ध्यान भी रखता है। फिल्म पिक्चर जो होती है या डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में का जो है लोगों की मानसिक पर काफ़ी स्वाभाविक प्रभाव पड़ता ही है, और दृश्य यानी जो है एडवल विजुअल की प्रक्रिया में अशिक्षितों को भी काफ़ी प्रभावित कर देती है। अगली पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें है सार्वजनिक सभाएं। देखिए, सार्वजनिक सभाएं ये भी बहुत काफ़ी ज़रूरी होती है। विभिन्न प्रकार के सामाजिक, संस्कृति, बौद्धिक और राजनीतिक क्रियाकलापों के लिए जो है जनमत को जो है आकार प्रदान करने में सार्वजनिक सभाएं और मंच जो है प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। ये कल्याणमय यानी लोक कल्याण के मुद्दे को भी उठाते हैं, और बड़ी बड़ी जो संख्या में लोगों को भाषण, जो सेमिनार, विचार गोष्ठी और कार्यक्रम और सम्मेलन के माध्यम से एकत्र भी करते हैं। ये लोगों के साथ निजी और जो भावनात्मक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास भी करती है, और उन्हें सकारात्मक और स्वस्थ कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करती है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। अगर बात यदि हम करें राजनीतिक दल और उनके क्रियाकलाप की, तो ये बात साफ हो जाता है कि राजनीतिक दल जनता का निर्माण और उसे संगठित भी करते हैं। देखिए, जनता में अगर आप देखिएगा तो जनता जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है सरकार को जो है मार्गदर्शन करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मार्गदर्शन के रूप में जो इनका प्रेशर ग्रुप होती है, यानी जो ऑपोजिट पार्टी होती है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर भूमिका अदा करते हैं। उन्हें जनमत को जो है लंबत करने वाले कहा जाता है। राजनीतिक दल लोगों को सार्वजनिक मुद्दे में से केवल अवगत ही नहीं कराते हैं, बल्कि उनका मुख्य उद्देश्य लोगों के राजनीतिक रूप से सतर्क करना भी होता है, ताकि लोग सार्वजनिक समस्याओं के विषय में सोच सकें। और राजनीतिक दल जनमत को अपने पक्ष में करने के लिए पत्रिकाएं, फॉर्मुलेंट और इश्तिहार और घोषणा पत्र आदि छपवाते भी हैं। उसके पश्चात है जनमत सर्वेक्षण। देखिए, जनमत सर्वेक्षण समय का जो है रुझान या झुकाव दिखलाता है। यह विभिन्न जो है राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृति व आर्थिक विषयों पर जनता के व्यवहार और उसके विचारों के संदर्भ में जानकारी एकत्र करने का एक जो है प्रभावशाली तरीका माना जा सकता है। सामान्यतः इसका संचालन व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। देखिए, व्यवसायिक जो है संस्थाएं वो चलाती है इसको, जो जनसंख्या के समुचित प्रतिनिधित्व का जो है ध्यान भी रखती है। हाल के वर्षों में जनमत को समझने और उनका जो है मूल्यांकन करने में जनमत सर्वेक्षण एक बहुत ही उपयोगी और लोकप्रिय माध्यम बन गया है। बहुत से अवसरों पर जो है मतगणना का यह तरीका स्थिति को ठीक ढंग से जांच करने में सफल नहीं हो पाया है, और इसी कारण इसकी परिणाम और भविष्यवाणी गलत भी साबित हुई है। लेकिन निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है जनमत पर इसका प्रभाव जो है काफ़ी उल्लेखनीय ही है। उसके पश्चात है शिक्षण संस्थाएं। देखिए, शिक्षण संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज, साहित्यिक मंडलों, अध्ययन समूह और विश्वविद्यालय और जो है पुस्तकालय सम्मिलित किया गया है। ये जनमत को एक बड़ी सीमा तक जो है प्रभावित कर सकते हैं। किशोर जनसंख्या दूसरे के विचारों से जल्दी ही प्रभावित हो जाती है, जो कि कोई बुराई नहीं, सच्चाई बात है कि बच्चे जो है बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के। इसलिए उस आयु के किशोरों के लिए सही प्रकार के प्रशिक्षण की बहुत आवश्यकता होती है। प्रसिद्ध जो है नेतागण, बुद्धिजीवी और जो शिक्षाविद उनकी नेतृत्व क्षमता के आकार प्रदान करने में सहायता भी करते हैं। वाद विवाद और विचार विमर्श, सेमिनार आदि के माध्यम से जनमत का निर्माण करने में सहायक भी होते हैं।
पाठ्यक्रम के साथ साथ अनेक गतिविधियां जैसे नाटक, विचार गोष्ठियाँ, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिताएं आदि में छात्रों की जो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर संवेदनशील बनाने में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। आप सोचते होंगे कि इसमें बच्चा क्या प्रभाव पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि हमारे देश के लिए जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो प्रदूषण है। तो आप अगर कोई पेंटिंग करवा लो प्रदूषण के ऊपर, तो बच्चे अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छे से व्यक्त करते हैं। शायद ये सरकार नहीं जान पाती है, लेकिन बच्चे बहुत ही जो है अच्छी और भावनात्मक रूप से उन चीज़ों को प्रदर्शन करने की कोशिश करती है जो हमारे देश के लिए खतरा का सबब बनता है। तो इससे बच्चों का जो है मानसिकता को जो है सही रास्ते पर लाया जा सकता है। लेकिन जनमत के प्रयोग भी कुछ सीमाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जनता स्थानीय और राष्ट्रीय मामलों की रुचि लेती है। जनता जो है मोटी तौर पे ठीक ठाक जो है जानकारी रखती है। इसी कारण से वह बुद्धि एवं तर्क के आधार पर सोचती और तर्क जो है एक संगत निर्माण भी होती है। कहते हैं जनता का मत चुनावों के माध्यम से अभिव्यक्त भी होता है और जनमत सरकार को अपने आदेशों का पालन करने के लिए भी हमेशा बाध्य करती है। और सरकार भी सतर्क होकर ऐसे कानून का निर्माण करती है जो उन सामाजिक और नैतिक मूल्य पर आधारित हो जिन्हें जनमत द्वारा जो है अभिव्यक्त किया भी जाता हो। जनमत में विचारों की विविधता एवं बहुलता को देखा जा सकता है। कभी कभी इसे बहुत ही जो है अनौपचारिक रूप से भी लिया जाता है। ऐसे में यह व्याख्या का विषय बन जाता है। गलती अब विचार या मत में नहीं होती है बल्कि उसकी व्याख्या से ही होती है। ऐसे समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो है नमूने ही विश्वसनीय न हो। जो कहते हैं आधुनिक आम समाजों में लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़ते, सुनते और देखते भी हैं। तो ऐसे हुए उनके लिए असत्य और तथ्यों की जो है वास्तविकता को जो है जांचना सरल नहीं रह जाता है। इस कारण से ये लोगों के सामने ऐसी चुनौती प्रस्तुत करता है कि वह समाचार और विचारों को ठीक ढंग से जो है अंतर रखना सीख लेते हैं। इन सब बातों के पश्चात भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता के सरकार और नागरिक के बीच संचार का सबसे प्रभावशाली साधन के रूप में देखा जा सकता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।